Assalamu alaikum students, welcome to Ford Public School e-learning class 3 subject English A. Congratulations students, you are promoted to class 3 and this is your new academic session 2021 and 22. I am your English teacher Salman Nasrullah and today we are going to discuss first chapter of our midterm syllabus, the Holy Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Today we will do its first part, reading and explanation. We will also do the book exercises of this chapter. Let's start. Students, open your books at page number 5. The Holy Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Holy means Muqaddas, Pak. Prophet means Nabi, Rasul. As you know, Holy Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam is the last prophet of Allah. And who is the first prophet of Allah? Yes, Hazrat Adam alayhi salam is the first prophet of Allah. Let's start the reading. Prophets have been sent as role models for mankind. अम्बिया पूरी इंसानियत मीन्स कि पूरी दुनिया के इंसानों के लिए नमूने या मिसाल के तौर पर भेजे गए मीन्स कि उनकी ज़िंदगी हमारे लिए रोल मॉडल है, मिसाल है जिसे हम बहुत कुछ सीख सकते हैं. स्टूडेंट्स, राइट द मीनिंग्स ऑफ द डिफ़िकल्ट वर्ड्स, अंडरलाइन द वर्ड विद रूलर एंड देन राइट द मीनिंग ओवर इट. सेंट मीन्स भेजे, मॉडल मिसाल, मैनकाइंड इंसानियत या बनी आदम. Allah sent them to teach us how to lead our lives. अल्लाह ताला ने उनको हमें ज़िंदगी गुजारने के तरीके सिखाने के लिए भेजा ताकि वो हमें बता सके कि क्या हमारे लिए अच्छा है और क्या हमारे लिए बुरा है. टीच मीन्स सिखाना, लीड मीन्स रहनुमाई करना, लाइव्स मीन्स ज़िंदगियाँ. A number of prophets have been sent for the guidance of human beings. बहुत से अम्बिया को इंसानों की हिदायत के लिए या रहनुमाई के लिए भेजा गया. गाइडेंस मीन्स हिदायत या रहनुमाई. The Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam is the last prophet of Allah and the best role model for the world. आप sallallahu alaihi wasallam अल्लाह के आखिरी नबी और रसूल है और वो इस पूरी दुनिया के लिए एक बेहतरीन मिसाल और नमूने हैं. Best means बेहतरीन, model means मिसाल. His life is full of lessons for us. उनकी पूरी ज़िंदगी हमारे लिए मिसाल है जिससे हम बहुत कुछ सीख सकते हैं और अपने आप को एक अच्छे इंसान और मुसलमान बना सकते हैं. His life is full of lessons for us. उनकी पूरी ज़िंदगी हमारे लिए सबक से भरी हुई है. The Holy Prophet sallallahu alaihi wasallam was born in Makkah in the month of Rabiul Awwal. आप sallallahu alaihi wasallam मक्का में रबीउल अव्वल की महीने में पैदा हुए. Born means पैदा हुए. Rabiul Awwal is an Islamic month. He belonged to the tribe of Quraysh. उनका ताल्लुक कुरैश के कबीले से था. Belong means ताल्लुक, tribe means कबीला. पहले ज़माने में ट्राइब्स होते थे, कबीले होते थे जिनके अपने अपने नेम्स होते थे. आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कबीले का क्या नेम था? कुरैश. His sallallahu alaihi wasallam family can be traced back to Hazrat Ibrahim alayhi salam and Hazrat Ismail alayhi salam. आप sallallahu alaihi wasallam का सिलसिला नसब हज़रत इब्राहीम अलैहि सलाम और हज़रत इस्माइल अलैहि सलाम से चला आ रहा है. मीन्स कि ये उनके आबा अजदाद थे, उनके बड़े थे. His father passed away before his birth. आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश से पहले वफ़ात पा चुके थे. Passed away means वफ़ात हो जाना. Later his mother also left this world when he was just 6. बाद में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वालिदा भी ये दुनिया छोड़ के चली गई जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र सिर्फ 6 साल थी. Later means बाद में, left means छोड़ा. After that he was looked after by his grandfather Hazrat Abdul Muttalib and then by his uncle Hazrat Abu Talib. बाद में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की परवरिश की जिम्मेदारी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दादा ने ली. Looked after means देखभाल, grandfather means दादा और उनके इंतकाल के बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा अबू तालिब ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की परवरिश की. In those times the Arabs ran astray from the true path taught by the earlier prophets. उस ज़माने में अरब बहुत गुमराह हुए थे. ठीक है, जो सीधा रास्ता उनको पहले अम्बिया ने सिखाया था, अल्लाह का रास्ता, अल्लाह की तालीमात सिखाई थी, वो बिल्कुल भुला बैठे थे. ठीक है, बहुत ज़्यादा गुमराह मीन्स के सीधी राह से भटक जाना. They had forgotten the prophet's message and started worshipping idols. उन्होंने पहले अम्बिया की तालीमात को, उनके पैगाम को भुला दिया था और उन्होंने बुतों की इबादत शुरू की थी. Forgotten means भूला हुआ, message means पैगाम, worshipping इबादत करना, idols means बुतों की.
At the age of 25, the Holy Prophet sallallahu alaihi wasallam married Hazrat Khadija रज़ियल्लाहु ताला अन्हा. 25 साल की उम्र में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शादी हज़रत खदीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से हो गई थी. Allah sent the first revelation to him at the age of 40. अल्लाह ताला ने जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर पहली वही नाजिल की तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एज कितनी थी, उम्र कितनी थी? 40 ईयर्स, 40 साल. रेवलेशन मीन्स वही. अंबिया को जब अल्लाह ताला का पैगाम आता है, मैसेज आता है तो उसको वही कहते हैं, रेवलेशन. Allah sent the Holy Prophet sallallahu alaihi wasallam to help these people find the right path. अल्लाह ताला ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उन लोगों की मदद के लिए भेजा ताकि वो जो है बुरे कामों से अपने आप को रोक सके. आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनको बता सके कि ये अच्छे काम नहीं है, एक अल्लाह की इबादत की जाए और सिर्फ उसकी बात मानी जाए. The Holy Prophet Hazrat Muhammad sallallahu alaihi wasallam work hard to reform their way of life. आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनकी इस्लाह के लिए, उनकी बेहतरी के लिए सख्त कोशिश की, बहुत मेहनत की ताकि वो जो है इन बुरे कामों को छोड़ के अल्लाह के रास्ते पे चले, अल्लाह के रास्ते पे चले. Students, turn the page. Now come on page 6. He changed their habits and manners by presenting them his own example. आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनकी आदत और तरीके ज़िंदगी को चेंज करने के लिए, तब्दील करने के लिए अपनी मिसाल पेश की. आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पहले हर काम खुद किया और फिर उनको बताया कि आप लोग भी ऐसे करें, चाहे वो नमाज़ पढ़नी हो, इबादत का हो या किसी से अच्छी तरीके से बात करनी हो. ज़िंदगी के हर मैदान में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको हर काम खुद करके सिखाया, खुद करके बताया. हैबिट्स मीन्स आदत. Own means अपनी, example मिसाल. Even before prophethood, he was sallallahu alaihi wasallam was known as Sadiq and Amin. Sadiq means truthful and Amin means trustworthy. ठीक है, नबूवत से पहले भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सादिक और अमीन के नामों से जाने जाते थे. Truthful means सच्चे, ट्रस्टवर्थी मीन्स अमानतदार. आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमेशा सच बोलते थे और लोग अपनी अमानतें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास रखवाते थे. He preached them to worship one true God Allah, to speak the truth, to show mercy to the poor, to respect the women and to be kind to the children. Preached means तबलीग, तालीम देना. आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको एक अल्लाह की इबादत करने की तबलीग की. To speak the truth, उनको कहा कि हमेशा सच बोलना चाहिए. टू शो मर्सी टू द पुअर, गरीबों पे रहम खाने की या उनके साथ अच्छा सलूक करने की तबलीग की. मर्सी मीन्स रहम. टू रिस्पेक्ट द वुमेन, औरतों की इज्जत करने की. एंड टू बी काइंड टू द चिल्ड्रन, और बच्चों के साथ शफकत से, मोहब्बत से पेश आने की तबलीग की. His sunnah was a guiding light for the Arabs which helped them find the right path and unite under the banner of Islam. आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत एक रोशन रहनुमाई थी अरब्स के लिए. किन के लिए? अरब्स के लिए, जिसने उनको सीधी राह दिखाने में, सीधी राह पर चलने में मदद की और उनको इस्लाम के झंडे तले मुत्तहिद होने में या एक होने में मदद की. गाइडिंग लाइट मीन्स रोशन रहनुमाई. यूनाइट मीन्स एक होने में. बैनर मीन्स इस्लाम. He brought the whole Arabia under the umbrella of Islam. आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पूरे अरब को इस्लाम की छतरी तले लेके आए, मीन्स कि वो सब के सब मुसलमान हो गए. The Holy Prophet sallallahu alaihi wasallam taught his followers a simple way of life. आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने पैरकारों को, मीन्स के मुसलमानों को सादा ज़िंदगी गुजारने की तालीम दी. He wanted the Muslims to live peacefully, serve others and help the needy. आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चाहते थे कि मुसलमान अमन से रहे. Peacefully means अमन से रहे, अमन से. Serve others, एक दूसरे की खिदमत करे. And help the needy, और ज़रूरतमंदों की मदद करे. Help the needy means कि ज़रूरतमंदों की मदद करे. His life is the perfect role model for mankind. आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी पूरी इंसानियत के लिए एक मिसाल है जिससे हम बहुत कुछ सीख सकते हैं और हम अच्छे मुसलमान और अच्छे इंसान बन सकते हैं. Now come on page number 7. Exercise number 1. Answer these questions. We will do these questions in our copy. Now come on exercise 2. Read the lesson and complete the sentences below. Here we have some blanks which we have to fill. Number A.
He work hard to dash them, reform them. He आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात हो रही है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनकी इस्लाह के लिए सख्त मेहनत की, कोशिश की. He changed their habits and dash by giving his own example. आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनकी आदात और मैनर्स, उनके तरीके ज़िंदगी को, रवैयों को चेंज करने के लिए अपनी मिसाल पेश की. He सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मैरिड एट द एज ऑफ 25. इस ब्लैंक में क्या आता है? मैरिड. आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शादी 25 साल की उम्र में हुई. He is the best role model for the whole world. रोल मॉडल, यहाँ पे क्या आता है? रोल मॉडल. ओके, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पूरी दुनिया के लिए एक बेहतरीन मिसाल है. Now come on exercise 3. Mark the right answer from the given choices. One has been done for you. Number 1. Who is the last prophet of Allah? Here we have 4 options. Hazrat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Hazrat Adam alayhi salam, Hazrat Dawood alayhi salam, Hazrat Ismail alayhi salam. The right answer is Hazrat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Number 2. Where was our holy prophet Hazrat Muhammad sallallahu alaihi wasallam born? आप sallallahu alaihi wasallam कहाँ पैदा हुए? जद्दा, Kuwait, Medina, Makkah. The right answer is Makkah. What did the Arabs worship those days? उस ज़माने में अरब किस चीज़ की इबादत करते थे? The sun, सूरज की, idols, बुतों की, stones, पत्थरों की, trees, दरख्तों की. The right answer is idols, बुतों की. Fourth one is, at what age did the Holy Prophet sallallahu alaihi wasallam marry Hazrat Khadija रज़ियल्लाहु ताला अन्हा? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शादी कितनी साल की उम्र में हज़रत खदीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से हो गई थी? 25 years, 40 years, 30 years, 35 years. The right answer is 25 years. Now come on page number 8. Number 5th is, what is the meaning of Sadiq? सादिक का क्या मतलब है? ब्रेव, बहादुर, काइंड, मेहरबान, ऑनेस्ट, ईमानदार, ट्रुथफुल, सच्चा. The meaning of Sadiq is truthful. Okay, सच्चा. Okay, now students, short and long vowels. Okay, short vowels कौन से हैं और long vowels कौन से हैं? ये देखिए, read the given words aloud and recognize the difference between long and short vowel sounds. ठीक है, short vowel sound कौन सी है और long vowel sound कौन सी है? Short vowel sound, cat, bat, sick, hop, duck. ओके, इसमें one टाइम एक वॉवल जो है, देखिए एक दफ़ा ही यूज़ हुआ है, जो कि लॉन्ग वॉवल साउंड नहीं बन रही. शॉर्ट, कैट, बैट, सिक, हॉप, डक. नाउ लॉन्ग, शीप, बीट, डीप. ओके, इनकी साउंड क्या बन रही है? थोड़ी लॉन्ग बन रही है. ओके, हेयर आर 2 वॉवल्स. ओके, यहाँ पे 2 वॉवल्स यूज हुए हैं, तो इनकी साउंड क्या बन रही है? इट मेक अ लाउड साउंड. Now come on grammar portion. Exercise 1. Fill in the blanks with a, an or the. Peshawar is a dash big city. Okay, Peshawar is a big city. Peshawar is a proper noun. Okay, ये किसी ख़ास जगह का नेम है. Peshawar एक बड़ा शहर है. Peshawar is a big city. Here a comes. Okay. Dog is a faithful animal. Dog एक वफादार जानवर है. शहीर इज़ एन ऑनेस्ट बॉय. शहीर इज़ एन ऑनेस्ट बॉय. ओके, यहाँ पे हम बात करेंगे कि जो वर्ड्स वॉवल से स्टार्ट होते हैं, वी यूज़ एन बिफोर दैट वर्ड. लेकिन यहाँ पे इसकी प्रोनाउंसिएशन क्या बन रही है? ऑनेस्ट. ये तो स्टार्ट एच से है, पर हम इसको प्रोनाउंस क्या करते हैं? ऑनेस्ट. दैट्स वाई वी पुट एन. अर्शीना इज़ द एल्डेस्ट डॉटर इन दिस हाउस. ओके, अर्शीना इस घर में सबसे बड़ी बेटी है. द. देयर इज़ आ कैट इन द रूम. ठीक है, देयर इज़ आ कैट, सिर्फ एक कैट की बात हो रही है ना, तो अ हमने पुट किया है कि रूम में एक कैट है. देयर इज़ आ कैट इन द रूम. स्टूडेंट्स, कम ऑन पेज नंबर 9. F. You are dash good teacher. You are a good teacher. आप एक अच्छी टीचर हैं. These are dash easiest sums. These are the easiest sums. ये आसान तरीन सवालात हैं. Sums, okay, ये प्लूरल है ना. These are the easiest sums. Exercise number 2.
Write the feminine of the following. Masculine, feminine. Fox, vixen. Fox means lomad, vixen means lomdi. Bull, cow. Bell, guy. Dog, bitch. Horse, mare. Horse means ghoda, mare means ghodi. Lord, lady. Nephew, niece. Nephew means bhatija ya bhanja. Niece means bhatiji ya bhanji. Prince, princess. Prince means shehzada. Princess means shehzadi. Grandson, granddaughter. Grandson means pota ya nawasa. Granddaughter, poti ya nawasi. Exercise number 4. Insert the missing letters. Students, in these words, one letter is missing. Teacher. Look at this word. Only A is missing. ठीक है, यहाँ पे हमने A पुट करना है. Teacher. Student. U. Chair. A. Building. L. Market. K. Rose. S. Painting. N. Mother. O. Model. D. Now come on exercise number 5. Mark the right answer from the given choices. Number 1. Which one is an example of a short vowel? Okay, यहाँ पे है कुछ words जिसमें हमने बताना है कि कौन सा short vowel है और कौन सा long vowel है. Pick, boot, tree, heat. Short vowel sound कौन सी बन रही है? देखिए, pick, because here is only one vowel. Okay, pick. ये शॉर्ट वॉवल साउंड बन रही है. अब अगर आप हम बूट को देखें, बूट, यहाँ पे 2 वॉवल्स यूज हुए हैं और इसकी साउंड भी लॉन्ग बन रही है. बूट, ट्री, हीट. विच वन इज एन एग्जाम्पल ऑफ अ लॉन्ग वॉवल? शीट, पेन, टॉप, बैट. ओके, द राइट आंसर इज शीट. चूज द प्लूरल ऑफ मुस्लिम. ईमान, मुस्लिम्स, मुसलमान, मुस्लिम्स. The plural of Muslim is Muslims. On page number 10, number 4th one is dash orphan is a child without father. An orphan is a child without father. Orphan किसे कहते हैं? यतीम को. यतीम मीन्स के जिसकी फादर की डेथ हुई होती है. ओके, ये वर्ड वॉवल से स्टार्ट होता है. That's why we put n. Okay, n. Number 5th one is which one is the masculine of the word mother? Mother का masculine क्या है? Father, son, brother, grandfather. Father. Students, this is the end of part 1 reading, explanation and book exercises. We will do written work in our next class. Thank you and Allah Hafiz. Stay home, stay safe.